हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट्स आए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑलरेडी बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जैनिज़्म। तो जैनिज़्म को स्टार्ट करते हैं। जैनिज़्म के बारे में हम काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट हुआ है। तो इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश। So according to Jain tradition, there were 24 Tirthankars. Tirthankars. Tirthankar means what? Tirthankar means literally the ford maker. Ford maker. So Tirthankar is what? Tirthankar is the one who is a ford maker across the stream of existence. So he is the one who lets you pass through the life journey. So the first Tirthankar being Rishabhadev, who is also known as Adinath, and the 24th Tirthankar, that is the last Tirthankar, being Mahavir, Bhagwan Mahavir. He was the last Tirthankar. So let's talk about the mentions of these Tirthankars in various texts. So first of all, in Vishnu Puran and Bhagavad Puran, the description of Rishabdev was there, and Rishabdev was mentioned as the incarnation of Narayana. So Rishabh was mentioned as the incarnation of Narayana. Similarly, the name of two Jain Tirthankars, the Tirthankar named Rishabh and Bhagwan Arishtanemi, are found in the Rig Veda also. So the name of Tirthankars known as Rishabdev and the other one, the Tirthankar named Arishtanemi, are found in Rig Veda as well. So Rig Veda also talks about Tirthankars. We have historical proof of only the last two Tirthankars, that is Bhagwan Parshavnath, who was the 23rd Tirthankar, Bhagwan Parshavnath, and also about the 24th Tirthankar, that is Bhagwan Mahavir. About the previous 22 Tirthankars, no solid proofs are there, but about 23rd and 24th one, the historical proofs are there that these were the main Tirthankars that happened in Jainism. Parshavnath, talking about Parshavnath, so Parshavnath was a prince of Banaras, and he abandoned his throne and led the life of hermit, and he died at Samet Shikhar. So we are talking about the important aspects of life of Parshavanath, important place, the important places which are related to him. So Bhagwan Parshavnath, he was the prince of Banaras. So Banaras is important, and also he died at Samet Shikhar, which is another important place related to Parshavnath. And Samet Shikhar is in Parshavnath Hill. Parshavnath Hill, which is in the place name Giridiha, which is in Jharkhand. Bhagwan Parshavnath has given four main teachings which are known as Chaturthi, and these four teachings are: the first one was ahimsa, which means non-injury, which means one must follow the path of ahimsa, one must not do violence to anyone. Next one is satya, which means non-lying, that you should not lie to anyone. The third one being asteya, which means non-stealing, that is you should not steal from anyone. The fourth one being aparigraha, which means non-possession, that you should not possess anything, you should not show any possession on anything. These were the four main teachings of Parshavnath, and later on Bhagwan Mahavir adopted all these four teachings and added one more to it. So Bhagwan Mahavir added one more teaching to this Chaturthi, and the added one, that is the fifth one, is Brahmacharya.
So Bhagwan Mahavir said that we must follow the path of chastity. Chastity. So these were the 5 main teachings of Bhagwan Mahavir. So this was the basic introduction video about जैनिज़्म. अब इसी बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो जैनिज़्म की बात करें तो जैन ट्रेडिशन में बेसिकली 24 तीर्थंकर हुए हैं. तो जैन ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकर हुए हैं. ठीक है. तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? तीर्थंकर एक ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें फोर्ड मेकर कहा जाता है. फोर्ड मेकर मतलब कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपको जो लाइफ स्ट्रीम है, जो एग्जिस्टेंस है, उससे पार लगाने में हेल्प करते हैं, पार लगवाते हैं आपका. ठीक है. तो तीर्थंकर्स की बात करें तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है. और 24वें तीर्थंकर थे हमारे पास भगवान महावीर. 24वें थे भगवान महावीर. ठीक है. तो इनकी अगर बात करें कि वेरियस टेक्स्ट जो हुए हैं उनमें इनका अगर मेंशन देखा जाए तो जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण है वहाँ पे हमें ऋषभदेव के मेंशन पाया गया है और कहा गया है कि ऋषभदेव जो है वो भगवान नारायण की इनकारनेशन है, उन्हीं का एक रूप है. इसके अलावा जो भगवान ऋषभदेव ऋषभ हैं जो, और उसके साथ साथ भगवान जो अरिष्ट नेमी हैं, उन दोनों का मेंशन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है. ठीक है. तो ऋग्वेद में भी हमें पता लगता है कि जैनिज़्म एक कंसेप्ट हुआ है और जैन तीर्थंकर भी हुए हैं. हिस्टोरिकली अगर माना जाए, देखा जाए तो लास्ट 2 तीर्थंकर जो हुए हैं भगवान पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर. इन दोनों के हमारे पास सॉलिड प्रूफ है कि ये 2 तीर्थंकर हुए हैं जैनिज़्म में. जो पहले 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में इतने ज़्यादा सॉलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास, इतने ज़्यादा सॉलिड सबूत नहीं है हमारे पास, एविडेंसेस नहीं है इनके एग्जिस्टेंस के बारे में. अब भगवान पार्श्वनाथ की बात करें तो इनकी लाइफ की इम्पोर्टेंट जो 2 प्लेसेस की अगर बात करते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ जो थे वो, पहली बात तो ये कि वो बनारस के राजकुमार थे. उन्होंने अपनी गद्दी को त्याग दिया और एक साधु की ज़िंदगी जीने लगे. फिर उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो पहली इम्पोर्टेंट प्लेस क्या है? बनारस. ठीक है. और दूसरी इम्पोर्टेंट प्लेस इनके जीवन के साथ संबंधित है वो है समेत शिखर. ये एक जगह है जो पार्श्वनाथ पहाड़ी पे है. तो ये जगह जो है ये पार्श्वनाथ हिल जो है या पारसनाथ हिल जिसे कहा जाता है वो एक जगह है गिरिडीह झारखंड में, वहाँ पे है. ठीक है. तो झारखंड में एक जगह है गिरिडीह, वहाँ पे एक पहाड़ी है पार्श्वनाथ हिल जिसे पारसनाथ हिल भी कहा जाता है. वहाँ पे समेत शिखर में पार्श्वनाथ जी की मृत्यु हुई थी. पार्श्वनाथ जी ने अपने जीवन में, भगवान पार्श्वनाथ ने अपने जीवन में 4 मेन टीचिंग्स दी हैं जिन्हें चतुर्थी कहा जाता है. ठीक है. इनके बारे में डिस्कस करें तो पहली है हमारे पास अहिंसा, मतलब आप किसी पे हिंसा नहीं कर सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते. दूसरी है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. तीसरी है अस्तेय, विच मीन्स हमेशा कभी भी हमें चोरी नहीं करनी है, हमेशा नॉन स्टीलिंग के बात पे चलना है. चौथी है हमारे पास अपरिग्रह, विच मीन्स नॉन पोजेशन, मतलब किसी भी चीज़ पे अधिकार नहीं जता सकते आप, कहीं भी चीज़ पे हमारा अधिकार नहीं है. ठीक है. फिर इसके बाद भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने इन 4 टीचिंग्स में एक टीचिंग और ऐड कर दी. तो ये 4 टीचिंग्स तो दी, उन्होंने एक टीचिंग और ऐड कर दी. वो कौन सी है? ब्रह्मचर्य, विच मीन्स भगवान महावीर ने कहा कि हमें चेस्टिटी की लाइफ, ब्रह्मचारी का जीवन जीना चाहिए. तो ये 5 टीचिंग्स थी भगवान महावीर की, जिनमें से 4 पहले ही भगवान पार्श्वनाथ ने दी थी. ठीक है. तो ये थी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट जैनिज़्म. इसके बारे में काफ़ी कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.